This very story that we continue to track on CNN News 18. Now, Akhilesh Yadav has slammed the Uttar Pradesh government and government, in fact, over the Kavar Yatra. And he said that the Honorable Court should take suo motu cognizance and investigate the intentions of the government behind such administration and take appropriate punitive action. My colleague Siddhant Mishra is on the phone line with us for more inputs on this story. Siddhant, like we were discussing earlier in the morning, this is only going to escalate, considering this is a fairly dominant Muslim belt that we are talking about, and the Kavar Yatra has also followed this route, almost always. Now that more and more political voices, especially from the opposition India bloc, are really talking against this directive. Akhilesh Yadav at the forefront of it now. Look, now in fact Akhilesh Yadav has also joined the club of politicians to criticize this particular decision by the local administration. Now, first of all, it's very important to clarify that this order has come from the local administration. We are still awaiting response from the higher ups in Lucknow. Second, this has not been implemented in all the districts. It has only been implemented in Muzaffarnagar, the 240-kilometer stretch. And third, and the most important point is that the administration has to say that this decision has been taken so that there should not be any confusion, because in the past there were many incidents which took place because of the confusion, and that perhaps after the heated argument, it turned out to be a big problem for the administration in terms of law and order. So this time around, the shopkeepers have been asked to put their names in front of their shops. Now, the leaders like Asaduddin Owaisi, Akhilesh Yadav, and other opposition parties have slammed the government of Uttar Pradesh for coming up with such a diktat, because they feel that putting out names of the shopkeeper outside the shop has more to do with identification on the religious lines, and perhaps this could flare up the situation at the time of the yatra getting passed from that area, instead of maintaining law and order. So that is what opposition parties have to say. In fact, they are comparing this situation, this diktat, with the Nazi mindset and calling it food apartheid. So this is how the opposition parties are perhaps reacting to this diktat that has been issued by Muzaffarnagar administration. They have to say this has nothing to do with the religion. It is all because to maintain law and order when the yatra passes through 240-kilometer stretch in Muzaffarnagar. Now we have SSP from the police, get sound bites that has been done to avoid confusion. Okay. We are still awaiting response from the higher ups in Lucknow. Are they going to implement the same policy in every district? And do they have... yes, Siddhant, in fact, about that, Muzaffarnagar is not the only Muslim belt from where this Kavar route is going to be passing, considering it is an area which has a lot of notoriety preceding. We always go back to 2013 Muzaffarnagar riots, when there was, of course, a massive flare-up between the two communities. Keeping that in mind, has such a decision been taken? In fact, I'm really sorry, Siddhant, I request you to stay with us. We have Dinesh Sharma, the Rajya Sabha MP, who's with us on the broadcast. Mr. Sharma, what do you first of all make of this directive by the Muzaffarnagar police? पहली चीज, प्रदेश स्तर पर इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। स्थानीय स्तर पर लोगों को, जो जिला प्रशासन होते हैं, उनको स्वतंत्रता होती है कि जो शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए वो अपने हिसाब से स्थानीय स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। तमाम पहले से इस बात की शिकायतें आती रही हैं कई वर्षों में कि वहां पर छदम नाम रखकर और एक धार्मिक जो कृत्य करने के लिए लोग पवित्र गंगा जल और तमाम अन्य जल नदियों से इकट्ठा करके नंगे पैर जो जाते हैं, तो उनमें छदम नामों को धरकर लोग सामान बेचते थे, तो उससे अनावश्यक उनके आपस के विवाद खड़े होते थे। इस चीज को जिला प्रशासन ने समझा कि विवाद की जड़ क्या है, तो उन्होंने एक चीज कहा कि जो छदम नाम से किसी भी चीज को बेचना वैसे भी कानूनी रूप में ठीक नहीं है। जब हम जीएसटी भरते हैं, जब हम कोई और टैक्स को पे करते हैं, तो हम दुकान में मालिक का नाम भी लिखते हैं और वो प्रोडक्ट का नाम भी लिखते हैं। तो इसमें लिख देने में दुकान के ऊपर कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इस प्रकार का कोई आदेश नहीं किया गया कि फलाना व्यक्ति से लेना है या फलाना व्यक्ति से नहीं लेना है।
जो चाहे ले, जो चाहे ना ले, ये जो उपभोक्ता है उस पे निर्भर करता है। लेकिन चूंकि श्रावण का एक पवित्र माह है और इस माह में उनकी कुछ संयम और कुछ सीमाएं होती हैं। किसी प्रकार का विवाद ना हो। आपने देखा होगा कि आपकी डीजे पर भी उन्होंने एक निश्चित आवाज रहे इसका नियम बांधा है। उनको समय से निकले सीसीटीवी से उनकी सुरक्षा, ये भी तमाम चीजों का बदलाव किया है। उसी के तहत स्थानीय प्रशासन ने ये भी व्यवस्था करी है कि दुकानों पर अगर नाम रहेगा तो नाम से पूछने और उसके बाद झगड़ा करने की कोई नौबत नहीं आएगी। दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि मुजफ्फरनगर पहले भी इस तरह के रायत से भी प्रभावित हुआ है। 2013 में क्या हुआ था हम सबको पता है। तो ये जो आप प्रिवेंटिव मेजर जिसको आप नाम दे रहे हैं, जिसके लिए इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, सिर्फ मुजफ्फरनगर ही क्यों? और अगर नाम डिस्प्ले करना है तो जैसे आपने बताया ये एक स्थानीय तौर पे किया गया है। अभी तक सीनियर लीडरशिप की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान तो आया नहीं है। व्हाई जस्ट मुजफ्फरनगर सर? मैंने कहा कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। झगड़े की जड़ का अगर पुलिस की रिपोर्ट आप निकाल के देखोगे तो कांवड़ियों से जहां पर विवाद हुआ था, जहां पर पत्थर चले थे 6-7 स्थानों पर, उन स्थानों पर जो दुकान को छदम नाम से रखकर लोग बेच रहे थे, उनसे पूछने पर और उनके बारे में जानने के बाद कांवड़ियों का और दुकानदारों के बीच में विवाद हुआ था और उस विवाद ने दंगे का रूप धारण कर लिया था। ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। शासन की प्राथमिकता यही है कि शांति व्यवस्था रहे, सभी जाति और धर्म का सम्मान बना रहे। अगर हम कोई चीज को बेच रहे हैं तो स्वामी को अपना नाम, वैसे ही भी जो उपभोक्ता संरक्षण के नियम हैं उसमें ये बात दी जाती है कि प्रोडक्ट का नाम भी लिखना होता है, उसका वजन भी लिखना होता है। और अब अगर मालिक का नाम भी लिख देंगे तो आपको हर्ज क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये दिनेश शर्मा जी, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड सेलिंग नहीं हो जाएगा शांति व्यवस्था के नाम पर, कंसिडरिंग ये कोई ऐसा डिक्टेट तो नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान में फॉलो होता है। जो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, ये तो एक आपको इसका जवाब जी पहले मैंने दिया कि स्थानीय स्तर पर कोई समस्याएं प्रकट होती हैं तो उसके निवारण की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। क्योंकि केवल मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की घटनाएं पहले घटी थी, वो नाम को लेकर कांवड़ियों का और उनका विवाद हुआ था, इसलिए स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने दिनेश शर्मा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का डिक्टेट आगे चल के और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली जब कांवड़ रूट वहां से निकलेगा तो पुलिस एम्पल मात्रा में वहां पे पुलिस का जत्था होना चाहिए। तो इन सब चीजों को देख के ये प्रिवेंटिव मेजर कम और प्रीएम्प्ट ज्यादा नहीं कर रहा है दंगों को? मैं समझता हूँ कि पुलिस की व्यवस्था भी पर्याप्त है, हेलीकॉप्टर से भी वॉच किया जा रहा है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल भी लगे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी लगी है, थाना अलर्ट है, यानी सुरक्षा की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। लेकिन आपस में सौहार्द बना रहे, आपस में विवाद ना हो, इसके लिए स्थानीय स्तर पर उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। सामान्य सी प्रक्रिया है, हम अपना घर पे अपनी नेम प्लेट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अगर हम अपने घर पे नेम प्लेट लगाते हैं तो अपने दुकान पे अगर नेम प्लेट लगा दी तो इसमें हर्ज क्या होगा? ऑलराइट, दिनेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। More reactions continue to pour in because remember this is turning out to be a big controversy that's coming in from the Muzaffarnagar district of Uttar Pradesh.